Hello, friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. In the previous class, we have started our chapter of part 3, Fundamental Rights, and we have covered Article 14, that is right to equality, then Article 15, Protection against discrimination, उसके सब पार्ट्स पढ़े. Then Article 16, Equal opportunity in public employment. Then comes Article 17, right against untouchability. Then Article 18, abolition of some titles. Then we have jumped to Article 19, in which I have told you number of subparts that are very important with respect to our exam point of view. तो आर्टिकल 19 में हमने क्या क्या पढ़ा था. हमारे पास फर्स्ट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच हैज़ इनहेरेंटली वन अनदर राइट दैट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो ऐसे ही बहुत सारे हैं. टू एक्सप्रेस द व्यू ऑफ अदर्स, तो इसी में आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो बातें कर ली तो थोड़े से असेंबल हो जाते हैं. तो सेकंड था असेंबल हो गए, बोर हो गए तो क्या करेंगे, एसोसिएशन बना लेते हैं. एसोसिएशन बना ली, फिर कहीं थोड़ा घूम के आ गए, उसके बाद वहाँ रेजिडेंस बना लिया, एंड देन वी विल सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ वोकेशन. तो ये सारे पार्ट्स थे. देर आर सम अदर पेरिफेरल थिंग्स दैट आई हैव told you that Article 19 will get automatically suspended in case of external emergencies. इसका मतलब war and external aggression पे. ये मैंने बताया था. Then one more thing I forgot to tell you that Article 19 is not valid for legal persons. Now what is a legal person? Like you, me, a foreigner. These are only persons. Understood? But a company, a society registered under some name, that is contribution of a legal person. So this legal person doesn't have this inherent or absolute right of Article 19. There are some restrictions on it. Another important point that I would like to highlight, in the previous lectures I have told you there are some rights which can be given only to citizens of the country. So कौन कौन सी थी आपको याद है? 15, 16, 19, 29, 30 and 18 clause 2. So these are fundamental rights that are specifically given to citizens. So Article 19 is for citizens. ये याद होगी आपको. Then one more thing I have told you that there are some rights which can be enforced to against both the individual as well as state. तो कौन कौन सी थी? 15 याद करिए, 15 clause 2 पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस इंडिविजुअल स्टेट दोनों पे थी. 15, 16 छोड़ दो. 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, स्टेट भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है. देन कम्स टू 21 विच वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ. देन 22 छोड़ दो, 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो ये थी थोड़ी सी बातें. वन मोर थिंग, इन राइट टू मूवमेंट इन सब पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 19 it only provides us right to freely move out of the country. So वापस कैसे आएंगे? आर्टिकल 21 से. तो आर्टिकल 21 अलाउस अस टू राइटफुली एंटर अवर कंट्री. ठीक है. तो ये छोटी मोटी चीज़ें क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ली जाए. वैसे तो पूछेंगे नहीं, थोड़ी सी इसेंट्रिक ऑड सी लगती है कि आर्टिकल 19 में बस बाहर जाने की राइट है और अंदर घूमने की राइट है, पर वापस आएंगे तो आर्टिकल 21 से आ सकते हैं ये सब. वन मोर थिंग, आर्टिकल 19 doesn't have any borders. If it means if you are an Indian citizen and you went abroad, कोई भी recreational trip, job and other things, so then also you will carry yourself Article 19. इसका मतलब on foreign land also you have every right to express yourself. Understood? Now jumping to Article 20. In the previous class there was a small mistake. I have told you that it is against अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो आर्टिकल 22 है, डेट वी विल बी कवरिंग टुडेज लेक्चर ओनली. बट अभी आर्टिकल 20 देखते हैं. इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी लॉज एंड एक्सेसिव पनिशमेंट. सो दीज आर 3 सब पार्ट्स.
So these are the three rights that Article 20 gives us. फर्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन. पहले थोड़े से समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब इफ टुडेज डेट इज से 20th of January, so now Parliament can't enact an act which will have implementation from a past date, from a previous date. इसका मतलब before 20th January. Understood? But there is some other portion to this particular act. Sorry, provision. What is it? Ex post facto criminal legislation. It means all the things that we have talked about till now. It applies only in matter of criminal legislation. तो सिविल्स में क्या आएगा? प्रीलिम्स में क्या आएगा? समझ गए? प्रीलिम्स में स्टेटमेंट ऐसी आएगी, आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स और प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आर्बिट्ररी लॉस एंड एक्सेसिव पनिशमेंट फ्रॉम बोथ क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस. तो क्रिमिनल तक सही था, यहाँ जहाँ सिविल केसेस आ गया, दिस इज द मिस्टेक. सो इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे सिविल में फंसाएंगे, ऐसे आपको प्रीलिम्स में फंसाएंगे. एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली. और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कोई पीछे की डेट से. भाई मैंने बीफ खा लिया आज, मान लीजिए मैंने खा लिया कल को, आज 20 जनवरी को मैंने खाया, कल को 21 जनवरी को सरकार ने बोला जिसने बीफ खाया उसको फांसी की सज़ा होगी. कब से? जिसने 15 जनवरी से बाद में बीफ खाया है उसको फांसी की सज़ा मिलेगी. सो दिस इज द एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ एन एक्ट फ्रॉम अ पास्ट डेट. सो एज इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, है ना, पीनल सज़ा मिल रही है, क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधा फांसी पे लटका जा रहा है. सो एज इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आवर फंडामेंटल राइट्स. How? Because the Constitution has restricted the enactment of this particular act, ex post facto criminal legislation. क्या आएगा एग्जाम में? सिविल. अब सिविल का भी केस बहुत ही प्रोमिनेंट है, आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है. द गवर्नमेंट इज इन टसल विद वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी लाइक फेसबुक एंड गूगल. वाई? बिकॉज पार्लियामेंट हैज़ enacted or amended the Finance Act of 2017 to impose a certain tax on these multinational companies like Google, and thus the name has been coined Google tax. So in 2000, sitting in 2020 or 21, the government is enacting a civil provision from a past date. So this is valid and it is not in contravention with our fundamental rights, as it is only regarding criminal legislation. So yes, Parliament can go back in time, can go in past and enact a civil law. The second is the double jeopardy. It means if I have committed a mistake, an offense, and I am a felon, then for the commitment of one mistake I can't be given punishment more than one. Understood? अगर मैंने एक ही मिस्टेक मैंने किया है, ड्रिंक एंड ड्राइव, सो इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट्स फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग मुझे कितनी सज़ा मिलेगी? ओनली वन. इफ आई हैव डन ड्रिंक एंड ड्राइव प्लस आई हैव क्रिएटेड अ रकस ऑन द पर्सन्स स्लीपिंग इन स्ट्रीट्स, सो इसमें मेरे को कितने मिलनी चाहिए? यस, ड्रिंक एंड ड्राइव प्लस अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग जाएगा, सो 2. अंडरस्टूड? सो इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डबल jeopardy, बट ओनली इन कोर्ट टर्म्स, jurisdiction terms. Suppose there is an IAS, there is an IAS officer and he has found to be guilty corruption. Now court has proved this point. ठीक है, जजमेंट दे दी और इसे 2 साल की जेल हो गई IAS ऑफिसर को. Now जब वो 2 साल के बाद आया
ये इमेजिनरी थिंग है। जब वो 2 साल के बाद आया तो गया कि भाई मैं तो IAS हूँ, अपना ऑफिस तो ज्वाइन कर लूँ, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई सेंटेंस, नाउ प्लीज लेट मी ज्वाइन माई ऑफिस। नाउ ऑफिस द डिसिप्लिनरी कमिटी has been set up against this IAS officer, and this disciplinary committee has recommended or ordered for this IAS to resign from his office. So the disciplinary committee has released this IAS officer of his duties. So now is this the case of double jeopardy or not? थोड़ा सोचिए। Absolutely not. This is not the case of double jeopardy, as it is the disciplinary committee of a particular job. It means the court has given only one punishment, that please finish your sentence of 2 years of jail. This is only one punishment. Now the job committee is giving you another punishment, and that is completely different aspect of this double jeopardy. It means in only jurisdictory terms you have prevention of this act. तो आप जॉब पे जाओगे, वहाँ से आप निकाल दिए जाओगे, एंड यू कांट क्लेम डेट देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. दिस इज द डबल जेओपार्डी. द थर्ड इज सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, और ये भी किस में दिया जाएगा? यस, क्रिमिनल एक्ट. सो पुलिस और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कांट कंपेल यू टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ, अगेंस्ट योर ओन विल. और ये अभी प्रोमिनेंट केस चल रहा है श्रद्धा वॉकर मर्डर केस का. नार्को टेस्ट चल रहा है भाई, नार्को टेस्ट. इफ दिस टेस्ट इज सो रिलायबल एंड सक्सेसफुल, व्हाई कांट वी फोर्स एवरी क्रिमिनल टू अंडरगो दिस पर्टिकुलर टेस्ट? तब तो 100% जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा. तो ये क्यों नहीं हो पाता? देखिए आज आपको पता चल गया 20 clause 3. You can't be compelled to give self-incriminating evidence in a criminal case. तो ये क्रिमिनल बहुत अच्छा वर्ड याद रखना, प्रीलिम्स यही फंसाएगा आपको, सिविल भी दे देगा एंड सिविल केस भी दे देगा. अंडरस्टूड? नाउ योर होमवर्क इज, और ये बहुत यूपीएससी के एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्या पता यूपीएससी में पूछ ले, क्या पता CAPF में पूछ ले. नार्को टेस्ट में वन ऑफ द थिंग्स डेट गेट इंजेक्टेड इन योर ब्लड स्ट्रीम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग? ठीक है, बस आप पहले का वर्ड ही बता देंगे कौन सा एलिमेंट है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी इतनी हार्ड क्वेश्चन पूछेगी नहीं. और वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो वाटर या कैरोसिन में रखा जाता है. सो दिस वाज आर्टिकल 20. नाउ द मोस्ट फेमस आर्टिकल, आर्टिकल 21. So Article 21, I have told you in the previous classes, the most interpreted article in the entire constitution by the hands of judiciary. That is Article 21, which is right to life. Definition क्या है? No person should be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So this is very important term, procedure established by law. So this is written in our constitution, as I have told you the definition of Article 21. Most interpreted, the wording says right to life and personal liberty. Definition I have told you. Now one additional thing before going on this Article 21, there was a verdict in I think 2020 or 2021, right to access of internet. ठीक है, so that particular right has been interpreted by Supreme Court under Article 19.
So via internet you can express yourself in today's world. So that's why right to internet or right to access to internet comes under article 19. आर्टिकल 21 क्यों फेमस था 2017 में? यस, राइट टू प्राइवेसी, द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल कौन सा था, 377 है ना, 77 था, 377, कोई नालसा का केस था शायद से. सो पुट्टास्वामी केस में दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 definition in such a way that yes, you have the right to life and personal liberty, but right to life doesn't mean that you have the ability to breathe, but it gives the right to a dignified life. Understood? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट wants every person that is existing on the Indian soils to develop itself, to have all the opportunities to develop itself in all the spheres of life. इसका मतलब socially, educationally, spiritually, politically, economically, सारी चीज़ों में आप डेवलप होइए ताकि आप देश को कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएँ. अंडरस्टूड? Now Article 21 is the backbone of Part 3 and Part 4 of our Constitution, because all the rights, चाहे right to free speech and expression है, right to religion है, right against exploitation है, cultural and educational rights है, these all rights point towards one certain direction, that you have the right to a dignified life. So yes, Article 21 is the backbone of Part 3 and Part 4 of our Constitution. Moreover, as I have told you, this particular article, Article 21, has been interpreted largest number of times. So there are various things, inherited rights under Article 21. क्या है? राइट टू स्लीप है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू फ्री क्लीन एंड फ्री इन्वायरमेंट है, जो दिल्ली का केस चल रहा है हर विंटर में, दिल्ली पोल्यूशन. राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू हैव अ रेपुटेशन हो गया, राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको बता ही दिया. सो ऑल सच काइंड ऑफ राइट्स हैव बीन inherited in Article 21. Now in मेनका गांधी केस, बहुत ही अच्छा केस है ये, मेनका गांधी केस. In this case, Supreme Court has interpreted Article 21 in such a manner that Supreme Court has included yet another phrase in our Constitution, that is due process of law. So how this phrase is different from that phrase, procedure established by law? I have told you in the previous classes, this is a term originated in UK. As UK has parliamentary sovereignty, unwritten constitution, parliamentary sovereignty, दिक्कत मत लीजिए, ये सारे हम एक जगह क्लब करके पढ़ेंगे when we will discuss the Indian constitution with respect to the famous constitutions like UK, France, Britain, इन सब के बारे में, यूके, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, इन सब के बारे में. सो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एग्जिस्टेड इन यूके. नाउ पार्लियामेंट इज ऑल ओवर सुप्रीम, ऑल ओवर पावरफुल इन यूनाइटेड किंगडम. हेंस द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ मेकिंग अ लेजिस्लेशन कम्स अंडर पार्लियामेंट. इसका मतलब जुडिशरी डोंट हैव अ से whenever there is an implementation of this legislation made by parliament. Why? Because parliament is sovereign and supreme. This is known as procedure established by law. This procedure established by law किसके अंडर आता है ये? It is more dependent on the legislative wisdom. Procedure established by law heavily depends on this legislative wisdom concept and educated public opinion concept. Understood? देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. एक है बियर, और एक है पांडा. विच वन इज क्यूट? ये वाला है ना, मोर क्यूट है पांडा. Now, British has a dual personality. British government has the dual personality. When sun never sets
on the British Empire. It means the British Empire was at its peak, having various colonies across the world, including India. At that period of time, British government has dual personality. One British government is ruling the home soil, इसका मतलब the soil of United Kingdom, and there the British government acts as panda, the cute one. It means British government acts in the benefit of its people, the UK citizens. But whenever this British government is ruling its colony like India, then British government changed its form to this bear. It's called the खूंखार, aggressive, exploitative. Understood? So this procedure established by law is very much suitable on the soils of Britain. Why? Because there British government is acting as a panda. But in the making of our constitution, we have taken this term and applied in our Indian constitution. But now here the government is acting like a bear. So now we have to tame this bear, or we have to convert this bear to act like a panda. It means we have to give more powers to judiciary. यही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और मेनका गांधी जजमेंट में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डाल दिया. Procedure established by law prevents the judiciary from gaining excessive control. इसका मतलब procedure established by law prevents us from the arbitrary powers of executive. एक लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया है, तो सैंक्शन अथॉरिटी तो है उसके पास. एग्जीक्यूटिव उसको दूसरी फॉर्म में यूज़ ना कर ले, इसकी प्रिवेंशन हमें देता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो लॉ है वही इंप्लीमेंट करो, प्लीज डोंट चेंज इट्स फॉर्म. अंडरस्टूड? बट द फेयरिटी ऑफ लॉ विल नॉट बी असेस्ड बाय जुडिशरी. लॉ पे मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला. देखिए, मैंने बोला है आप लॉ का फॉर्म मत चेंज करो एग्जीक्यूटिव. सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रिवेंट्स us from the arbitrary powers of executive or arbitrary implementation of laws of executive. But due process of law is a encompassing phrase. इसका मतलब it gives or it prevents us from the arbitrary legislations as well as the arbitrary implementation of laws by executive. So यहाँ हमें both से प्रिवेंशन मिल रही है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. क्यों भाई लेजिस्लेचर से कैसे मिल रही है? बिकॉज जुडिशरी इन दिस केस विल चेक द फेयरिटी ऑफ लॉ ऑल्सो. हाउ फेयर इज द लॉ? यू हैव स्टोलन अ पेन एंड द लॉ दैट हैज बीन लेजिस्लेटेड बाय जुडिशरी इज गिविंग द मैक्सिमम penal provisions of 7 years for stealing a pen. 7 years, ridiculous है ना, ridiculous है. So the fairity of law will also be checked by the judiciary कि भाई लॉ खुद में फेयर है या नहीं. Why? Because in India we lack the legislative wisdom, we lack the educated public opinion. That's why this phrase has to be inserted in our constitution. Mind you, this is not written in our constitution, but Supreme Court has interpreted Article 21 in such a way that it included due process of law in our constitution. But procedure established by law is written in under Article 21. So this is yet another mistake that can be find out in prelims. कि हमारे में लिख देंगे The Constitution of India provides us from due process of law as well as procedure established by law. So this is very much incorrect. No, this is the correct statement. But if it is written that our due process of law as well as procedure established by law has been written in our constitution. So written word is the main difference.
यहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा कि रिटर्न वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा लिखा कुछ कि टू प्रिंसिपल्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज वेल एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज़ been oozing out from our constitution. इसका मतलब the spirit is there in our constitution. So yes, very much the spirit is there of the two phrases. So in Menka Gandhi case of 1978, due process of law has been inserted or interpreted in article 21. और इसमें क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ आ गया तो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो गए। अब इसमें 2-3 है, नो मैन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी को हम बिना सुने हुए सजा नहीं देंगे। नो मैन शुड बी जज ऑफ इट्स ओन केस, वाई, बिकॉज देर इज अ conflict of interest. Suppose I have some shares in a company A. Now this company A has been litigated in the judiciary. कैसे, this company A has been alleged to be doing tax evasion or base erosion and profit shifting that we will be doing in economic lectures. तो इस पर एलिगेशन लग गए भाई साहब कंपनी ए पे कि इसने बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग काम किया है। तो कहाँ गया लिटिगेशन, जुडिशरी में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। नाउ आई एम ओनिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेक्स इन दिस कंपनी एंड विद the luck, the small luck of this company है, I am presiding this particular case, ठीक है। तो क्या हो गया, दिक्कत होगी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्यों, क्योंकि अगर इसका नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान हुआ है। क्यों, बिकॉज आई ओन इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस कंपनी है। सो डेट्स वाई नो मैन शुड बी जज ऑफ हिज ओन केस। एंड द थर्ड इज अथॉरिटी शुड एक्ट बोनाफाइड। सो बाय इम्बाइबिंग दीज प्रिंसिपल्स in Menka Gandhi case, we have adopted the due process of law. So this was the whole Ram Katha of Article 21, and I wish you will able to write any mains question regarding Article 21. ये छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहा हूँ यही प्रीलिम्स में काम आएंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों से प्रिवेंट करता है, लेजिस्लेटिव आर्म से भी, एग्जीक्यूटिव आर्म से भी। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ओनली एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो गो एंड सी एनालाइज द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर। This Article 22 gives you certain rights when you get arrested. Understood? So there are two laws basically. Ordinary laws and preventive detention law. This is whole points that we have to remember regarding prelim point of view. There can be two set of laws, ordinary laws as well as preventive detention law. As the name suggests, ordinary laws means you have committed a felony. Now you will be, क्या बोल देंगे, you will be taken to court and the court will order its decree. You will be penalized, punishment 2 years of jail. तो ये जब आपका अरेस्ट हो रहा है पहले और आपको ले जाना है जुडिशरी के पास, तो तब आपके ऑर्डिनरी लॉज के राइट्स काम आएंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यू हैवंट वायलेटेड एनी पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कुछ नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़ा आपने, बट टू मेंटेन सम थिंग्स लाइक टू मेंटेन पब्लिक पीस, टू अवॉइड any contravention of law by you, so then you will be taken into custody even if you have not broken any kind of law.
दैट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आपको ले जाएंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, एक अननोन लोकेशन में डिस्क्लोज कर देंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज और मंथ्स विच फ्रॉम ऑफ विच यू कांट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल बेंच इज 3 months। अंडरस्टूड। ये इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बट 3 months तो है ही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैन बी legislated by all the states as well as सेंटर का यूआपा अनलॉफुल कुछ ऐसे प्रिवेंशन एक्ट ऐसे करके है, ठीक है। देन स्टेट्स में मको का, महाराष्ट्र का यूआपा मान लीजिए, यूएपीए, मको का यूआपा या यूआपा कुछ भी बोल लीजिए। Ordinary laws, you have some kind of rights. When you are arrested, the police or executive should let you know the grounds of your arrest. Second of all, you will be permitted to seek the advice of your lawyer. The third thing is within 24 hours, you will be produced before a judicial magistrate, excluding journey time, ठीक है। तो ये याद रखना, excluding, not including journey time। क्यों? आज आपने पकड़ा भाई, कुछ दिक्कत हो गई, मुंबई की ट्रैफिक में फंस गए, पुणे की ट्रैफिक में फंस गए, दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गए, तो पता ही नहीं कभी खुलती है ना। चाइना का वो कोई कुछ ट्रैफिक था, वो कितने 4-5 दिन चला था, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो 24 hours एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम यू विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो दीज आर ऑल द राइट्स डेट हैव बीन गिवन अंडर आर्टिकल 22। ये याद रखना, स्टेट्स प्लस सेंटर दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पे रूल्स बना सकते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 आर वेरी इजी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया था। इसका अगला पार्ट है राइट टू रिलीजन, डेट वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट है, जल्दी से सुन लीजिए। 23 क्या बोलता है? एनी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, बेगार लेबर, बॉन्डेड लेबर हैज़ बिन प्रोहिबिटेड। अंडरस्टूड। तो एनी अनपेड वर्क आपको नहीं किया जा सकता। फोर्सफुली अनपेड वर्क, बॉन्डेड लेबर, बेकार लेबर, ये सब रेस्ट्रिक्टेड है ऑन इंडियन सॉइल्स। अंडरस्टूड। 23 का इस सब पार्ट ये बोलता है बट द स्टेट और द सेंटर कैन फोर्स यू टू डू पेड और अनपेड वर्क प्रोवाइडेड दिस वर्क इज इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अंडरस्टूड। इफ टुमारो वी विल हैव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन वॉर में कौन सी कंट्रीज हैं हमारे दो सबसे अच्छे दोस्त, उनके साथ वॉर हो गया, तो यस एज रशिया ने क्या किया? अभी यही किया है, दे आर फोर्सिंग देयर यंगस्टर्स टू जॉइन आर्मी। तो पेड भी हो सकता है, अनपेड भी, उसकी सैलरी दे भी सकती है सरकार, नहीं भी दे सकती है, इंडिया में भी। अंडरस्टूड। बट प्रोवाइडेड इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन। दिस वाज आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 जो अडल्ट्स नहीं है या तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको मना करता है कि कुछ केमिकल और हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। आई थिंक द एज इज़ 15 years। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट ऑन लक्ष्मीकांत। मेरे हिसाब से मेरे को 15 साल याद आ रही है। तो द चिल्ड्रन विच आर बिलो 15 years कांट बी एम्प्लॉयड इन chemical and hazardous industries. So this was article 24. बट इसमें एक अच्छा पॉइंट आता है, जाते जाते एक और बात आपको बता देता हूँ। जब ये चीज़ हुई ना तो एक कोर्ट में केस चले गया, और कोर्ट में केस क्या बोला कि जब भी आप ढाबे पे जाते हो यू विल सी, क्या बोलते हो? यस, एवरीवेयर इन द ढाबाज यू विल फाइंड अ पर्सन नेम्ड एज छोटू, और वो छोटू सही में छोटा ही होता है। ही इज़ नॉट एन अडल्ट बट ऑफ अ यंगर एज। Note that Chotu is working in that dhaba and it is in contravention to the article 24 of our constitution। ठीक है, मान लीजिए उसको रखा है खाना बनाने के लिए। अब खाना वो उस पर बना रहे हैं, जो हमारे पहले के होते थे वो गोबर से बना के चूल्हे होते थे, उस पर फिर उपले रखे जाते थे, उसको जलाया जाता था। तो राइट टू फ्री एंड क्लीन एनवायरनमेंट 21 आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 24 भी वायलेट हो रहा है। हजार्डस इंडस्ट्री है, धुआं सूंघना पड़ रहा है आपको, है ना। ये तो दिक्कत हो गई, गलत बात हो गई।
बट अब ये जो केस गया था उसमें दिक्कत क्या थी, जो ढाबा ओनर था ये उसी का बच्चा था जो ऑर्डर ले रहा था। समझ पा रहे हैं केस में? तो भाई जैसे हम भी घर पे काम कर रहे हैं एंड आवर मॉम और डैड ऑर्डर्स अस टू क्लीन द रूम और टू डू पोचा, तो इसमें तो क्या बुरा है, हमको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दो झापड़ बात करेंगे। अमेरिका कोई ना ये कि हम कुछ भी बोल दें मम्मी पापा को, है ना। तो दिक्कत इधर ही आ गई। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अपार्ट फ्रॉम स्कूल आवर्स, यस द चिल्ड्रेन और योर ओन चिल्ड्रेन कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस, बट स्कूल टाइम से अपार्ट, मतलब उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फिर ठीक है आप उसको करवा लीजिए, या काइंड ऑफ वो आपकी हेल्प कर रहा है इन योर ओन बिजनेस। तो ये थी आज की क्लास। इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।